Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 15th and 16th of December. The session will be quite interesting and important, and in this video we will be discussing some important current affairs such as your BEML. They have secured 136 crore rupees contract from Ministry of Defence. Then we will be talking about India's first integrated waste management city that will be coming up in Uttar Pradesh. Then we will be talking about our Defence Minister Rajnath Singh's visit to Russia. Next thing is Asian Development Bank. They have signed a letter of intent with NABFID to address India's infrastructure funding gap. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on daily basis. Then weekly current affairs, monthly current affairs, they are uploaded regularly. That will help you to make sure that all the content, all the revision part is done on time, and it becomes easy for you to remember all the current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about BEML. BEML is your Bharat Earth Movers Limited. This is a PSU, public sector undertaking, and this comes under the Ministry of Defence. They have recently secured 136 crore rupees contract from Ministry of Defence for HMVs 8x8. This is your HMV, right? HMVs, correct? These are your high mobility vehicles. HMVs, that is your high mobility vehicle. Correct. This will enhance India's defense capabilities. These vehicles will be deployed for battlefield surveillance, and the initiative aims to basically aligns with Atmanirbhar Bharat. Correct. These HMVs, they will be manufactured at BEML, right? So BEML will be developing this, and the plant where they will be developed is in Kerala. What is the name of the plant? That is Palakkad plant in Kerala. Right. These HMVs, these are designed to operate in places where the temperature is extreme, such as your minus 20 degrees Celsius to plus 55 degree Celsius. If we talk about BEML, where is the headquarter of BEML? It is in Bengaluru, Karnataka. And who is the chairman and managing director of BEML? Shantanu Roy. Right. Next is India's first integrated waste management city to set up in Uttar Pradesh, Gorakhpur, by September 2025. Important question. Why? Because we are talking about waste management. We are talking about cleaning our cities. We are talking about recycling and reusing the waste that is being generated. Right? So India's first integrated waste management city and a learning center will be set up in Gorakhpur, Uttar Pradesh. It will be set up by this September 2025, and this will promote sustainable waste management practices. Right, this project was unveiled by Ministry of Environment, and this project will span across 40 acres of area, and this aim here is basically to make Suthni village a garbage free city. Right, Suthni village a garbage free village. Correct. Take a note of this. Here dry waste will be taken care of, wet waste will be taken care of, hazardous waste will be taken care of. Next is international affairs. Union Defense Minister Rajnath Singh was on a 3-day visit to Russia, right? And
this, remember, during this important thing that I want you all to remember is, here you can see Vladimir Putin, Defense Minister Rajnath Singh, right? And here the important thing is INS Tushil, right? Indian naval ship Tushil, right? This is a multi-role stealth frigate that has been commissioned into the Indian Navy in Russia. Correct? This is the latest multi-role stealth guided missile frigate that was commissioned formally into the Indian Navy in the presence of Defense Minister Rajnath Singh in Russia. Important thing. So do remember this, right? Next is banking and finance. Asian Development Bank and NABFID. What is this NABFID? This is your National Bank for Financing Infrastructure Development. These two organizations, they have recently signed a letter of intent to basically address the India's infrastructure funding gap. That means the amount of infrastructure that is required and the amount of funding that is there, right, to fund those infrastructure projects, there is a high gap in that. That means more infrastructure is required, but the funding is less. So in order to provide the funding so that better sustainable infrastructure can be made for India, for this Asian Development Bank, they have approved $500 million loan, right? And Asian Development Bank, apart from this, so this $500 million will be given to IIFCL, that is your Indian Infrastructure Finance Company Limited, for supporting the infrastructure project. This is the first loan. Second one is of $788.8 million loan that will be provided to Andhra Pradesh for developing the Amravati as the green smart capital city. Correct? Take a note of this, right? So these two organizations will be funding the gap in the infrastructure development. Moving on. Next is ICC Bank. They have signed an MOU with CBA to strengthen the Australia-India trade relationships. So ICICI, right? This is Mumbai, Maharashtra based, right? And they are the leading private sector bank. They have signed this MOU with CBA. CBA is your Commonwealth Bank of Australia. I repeat, it is Commonwealth Bank of Australia, right? This MOU will basically enhance trade and business collaboration between India and Australia. This MOU will allow both the banks to explore efforts to assist the corporate and business customers who are looking to invest in other banks' home country. Right here, the banks will assist customers who are migrating to Australia and India with banking services and will also support the cross-border payments. Correct? Take a note of this. If we talk about ICICI Bank, who is the Chief Executive Officer? Sandeep Bakshi, headquarter of which is in Mumbai, Maharashtra. If we talk about CBA, Commonwealth Bank of Australia, who is the Chief Executive Officer here? Matt Comian, and headquartered in Sydney, Australia. Next is SEBI. They have announced the expansion of T+0 settlement cycle for the top 500 stocks. Now, what is this T+0 settlement? T+0 settlement, this is a settlement process in which the transactions that are settled on the same day, right, as the trade date. There is no delay, right? That means if you want to transfer the amount to your account of the buyer, then the money is transferred to the account of the seller on the same day of the trade, right? Take a note of this. So SEBI, they have announced the expansion of this T+0 settlement cycle for the top 500 banks. This comes under the section 11 of the SEBI Act of 1992, that is read with regulation 15, right? Apart from this, for the initial phase, the eligible scripts will be made available for T+0 settlement, starting with the scripts at bottom 100 companies every month till top 500 companies are available for trading. Apart from this, SEBI has also allowed all the stockbrokers to participate in the optional T+0 settlement cycles, and they are further permitted to charge the differential brokerage for T+0 and T+1 settlement cycles within the regulatory limit. Then third, stock exchange, they will introduce a mechanism for the block deal window under the optional T+0 settlement cycle. This mechanism will be available only for the morning session during 8:45 a.m. to 9 a.m. Next, we have seen what is this T+0 settlement. Next is economy and business. S&P Global has retained India's GDP growth forecast for 6.8% for FY25. Right, so this was released in the India Outlook for 2025, and the GDP of India, what it is projected at 6.8% by S&P Global. Right, take a note of this. Where is the headquarter of S&P Global?
It is in New York, USA. Next is awards and recognition. UNEP, that is United Nations Environment Program, headquarter of which is in Nairobi, Kenya. So UNEP Champions of the Earth Award 2024 was presented, and Indian ecologist Madhav Gadgil was honored with the Lifetime Achievement here, right, in the Lifetime Achievement category here. So UNEP, what did they announce? They announced the Champions of the Earth Award, and in this, the Lifetime Achievement category, who was honored with this? Madhav Gadgil, Indian ecologist, right? This is basically for his contribution for the environmental protection, focusing on combating and degradation, drought, desertification, all these issues. Then, as we saw, headquarter of UNEP is in Nairobi, Kenya. And who is the executive director here? Inga Anderson, established in 1972. Let me show you some other awards here. For Lifetime Achievement, Madhav Gadgil of India. Policy Leadership, Sonia Gugarajara of Brazil. Science and Innovation, Luki. Entrepreneurial Vision, CKM Organization. Inspirational Action, Emmy Bowers Cordell. Then Inspiration and Action, that is Gabriel Bond. Next is Karnataka Police has won the inaugural FICCI Drone Award 2024. Right, FICCI, that is your Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. So FICCI Drone Award, awarded in the Training and Capacity Building category in Bengaluru, Karnataka, was awarded to whom? It was awarded to Karnataka State Police. Next is your acquisitions and mergers. If we look at them, first is your CCI approvals here. The combination acquisition of the certain shareholding in the Bagmane Developers Private Limited and Bagmane Rio Private Limited are a part of Bengaluru, Karnataka based Bagame Group by BREP Asia Third India Holding, correct? That is an arm of USA based Blackstone Incorporation. Second acquisition is of the stake in India Business Excellence Fund fork of a Category 2 Alternative Investment Fund registered with the SEBI by Gurugram, Haryana based Product Engineering and Manufacturing Company VVDN Technologies Private Limited. Right, and one more, remember here, the acquisition of 100% share capital of Nasik based Sysgroup Electrical Steel India Private Limited by J Square Electrical Steel Nasik Private Limited. Right, remember this also. Moving on, RBI, they have approved the Burman family to acquire stake in REL. REL is your what is REL? REL is your Religare Enterprise Limited. Right, so RBI approved the Burman family to acquire stake in the Religare Enterprise Limited, that is REL, and they will be acquiring worth 2,116 crore rupees. Right, this Relicare Enterprise Limited, this is a NBFC. This is an NBFC, correct? And let me show you here that Burman family, they will be acquiring how much percent stake for 2,116 crore rupees? Or 26% stake will be acquired here, correct? And earlier Burman family owns 25.12% stake. Now they will be holding 51% stake in REL after the RBI approval. Next is Science and Technology. ESA, that is your European Space Agency, they have launched the third Copernicus Sentinel-1C satellite for advancing Earth observation and maritime monitoring. I repeat, ESA, European Space Agency, they have successfully launched the third edition of the Copernicus Sentinel-1 satellite into Sun synchronous orbit at an altitude of 700 kilometers above the Vega C rocket from French Guiana Space, France. Right. Also remember this Sentinel-1A, it was the first satellite in the series launched in April 2014. This Sentinel-1C satellite, as you can see it in the picture here, it will strengthen the Sentinel-1 constellation, which includes two identical satellites in orbit. These Sentinel satellites, these are designed and built by a consortium of more than 70 companies, and here this Sentinel-1, it carries a C-band synthetic aperture radar instrument that will allow it to capture high resolution images of Earth surface. This satellite here will be used for environmental monitoring, disaster response, maritime surveillance, land use and urban planning. If we talk about European Space Agency, who is the Director General here? Joseph Escobar
headquartered in Paris, France, established in 1975. Moving on, next is Karman Drones partners with TCL for 5 years to develop UAV solutions. What is UAV? Unmanned aerial vehicles, right? These are kind of a drones only, right? So Karman Drones, they will be partnering with TCL, and TCL is not your Tata, right? This is your Troop Comforts Limited. This is your Troop Comforts. Let me show you a Troop Comforts Limited. This is a defense public sector undertaking under the Ministry of Defense, and they will be developing unmanned aerial vehicle solutions in various categories, right? Next is sports. Saudi Arabia to host the 2034 FIFA World Cup, right? So which country will be hosting the 2034 FIFA World Cup? It will be Saudi Arabia, and men's FIFA World Cup 2034, right? Take a note of this. And you must have seen on social media platforms also that many images of their stadiums, how they will be looking, those futuristic stadiums are surfacing online. Next is Arjun Argesi became the second Indian to reach the 2800 ELO rating in chess. I repeat, the first one was Vishwanath Anand, and now second is Grandmaster Arjun Argesi became the second Indian and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 points. Now, as of now, if we talk about who is the top player with the maximum number or highest rating in these ELO ratings, it is 2831, and it is of Magnus Carlsen. Magnus Carlsen is from Norway. Next is obituary. Indian squash player and Arjuna awardee Raj Manchanda has recently passed away. He was known as by the name Old Fox, passed away at the age of 79 in New Delhi. He was honored with the Best Service Sportsman Award in 1981 and the second highest sports honor, that is Arjuna Award, in 1983. Next is books and authors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has released Vikram Sampath's book, that is Tipu Sultan, the Saga of the Mysore Intrigue. Right, this is the name of the book. Authored by whom? This book is authored by Vikram Sampath, released by Dr. S. Jaishankar, and he described Tipu Sultan as a complex figure in Indian history who resisted the imposition of British colonial control over India. This book will be published by Penguin Random House, India. Next is important days. International Day of Neutrality observed on 12th of December. It is to raise awareness about the neutrality in relations between the countries and to promote global peace and security. Correct, take a note of this. And for the first time it was observed in 2017. Neutrality, what is it? It is a basically legal status that occurs when a state chooses not to take part in any war between other countries, right? Such as your India, right? When India is neutral both with NATO or USA or Ukraine or Russia, correct? Next is International Universal Health Coverage Day, observed on 12th of December. This day is observed to raise awareness about the strong and resilient health systems and about the universal health coverage. There is a theme that I want you all students to remember. Theme being health, it's on the government. This is the theme here that I want you all to remember. Next is state news. Chhattisgarh's Chief Minister Vishnu Deo Sai has launched Nikshay Nirmay Chhattisgarh Abhiyan. I repeat, Nikshay Nirmay Chhattisgarh Abhiyan, launched by Chhattisgarh and launched by person asked name of the Chief Minister Vishnu Deo Sai. This is a 100-day long health campaign launched at the AIIMS campus in Raipur, Chhattisgarh. The aim of this campaign is basically to eradicate disease such as your leprosy, tuberculosis and malaria. Right, this program will be running for 100 days, that is till March 24, 2025. Correct. Then the campaign will also include various health checkups and treatment of the elderly of the state. This campaign is a part of the vision to improve the health services in the Chhattisgarh state. Right. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part. Next, exercise Sinbex. This is a joint tabletop exercise held between Indian Army and
it is held between the Cambodian army, right? Where was this held? Location, it was held in Pune, Maharashtra, right? So this is between Indian army and Cambodian army. The exercise Sinbex, that is a joint tabletop exercise. This was this exercise, remember, in this question can be asked that where was this exercise held? So it was held in Pune, Maharashtra. And this exercise Sinbex had 20 personnel from both sides, and from Indian army it was infantry brigade. Infantry brigade, from which we saw these 20 personnels. Next, according to Niti Aayog's report, that is India's booming gig and platform economy perspectives and recommendations of the future work, it was published in June 2022. The number of gig and platform workers is expected to increase to 23.5 million by what year? By FY 2030. Right, the gig force workers will constitute 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood in India by FY 2030. As per the estimation of the report, around 7 million, that include women, were engaged in the gig economy in 2021, which constituted 2.6% of the non-agriculture workforce, and it is expected that from 2.7 or 2.6% in 2021, it will increase to 6.7% in 2030. Also, this data report suggested that by 2030, it is expected that this gig sector has a potential to create 90 million jobs, and it will contribute 1.25% of the GDP. Next, in November, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for the dash term, consolidating its position in global peace efforts. So, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for 25-26, and this is for positioning in global peace efforts. Correct? Take a note of this. Next is, to which country Russia handed over the BRICS chairmanship in the final Sherpa and Sous-Sherpa meeting of BRICS held in Russia in November. So Russia handed over the chairmanship of BRICS to Brazil, and Brazil was also the second BRICS country who opposed against the Belt and Road Initiative of China. Next, which country and India has recently signed a statement of intent to collaborate on design and development of electric propulsion systems for the Indian Navy? It is United Kingdom. Next, when is UN Day for Remembrance of All Victims of Chemical Warfare annually observed across the globe? It is 30th of November we observe this day, and the first ever day was observed in 2016. Next, which state hockey team has recently won the 14th edition of Hockey India Senior Men National Championship 2024? So, which country or which state hockey team has won it? It is Odisha State's hockey team that won it by 5-1 in the finals by defeating Haryana. Next, which company has recently signed an agreement with the Transport Department of the Government of West Bengal worth 226.18 crore rupees? It is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. These vessels will have a catamaran hull design and will be built with aluminium and fiber reinforced polymer. Next, name the joint military exercise held between the Indian Army and Malaysian Army that commenced at the Pahang district of Malaysia from 2nd to 15th of December. What is the name of that exercise? It is Harimau Shakti. And in this, from Indian Army, remember, Meher Regiment. Personals from Meher Regiment took part. That is 78 persons from the Meher Regiment took part. Next, in November, Government of India and Asian Development Bank have signed a dash loan agreement aiming at enhancing the horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials. So, Government of India and Asian Development Bank, they have signed $98 million loan here. Next, who has been recently elected as the first female president of Namibia for a period of 5 years? So, Nedumpuli Netumbo Nandi-Ndaitwah, right, has been appointed as the first female president of Namibia. Next, in November, World Trade Organization General Council unanimously reappointed
Ngozi Okonjo-Iweala as the 8th Director General for a consecutive 4 years term. This will be her second term that will begin on 1st of September 2025. Next, where was the inaugural session of the Global Soil Conference held in November? Where was it held? It was held in New Delhi. And the theme of this conference is Caring Soils Beyond Food Security, Climate Change Mitigation and Ecosystem Services. Next, who has recently chosen as the US ambassador to the North Atlantic Treaty Organization? So, US ambassador to NATO, he will be Matt Whitaker, right? Next, under which ministry Sugamya Bharat Abhiyan, also known as the Accessible India Campaign, a flagship initiative for the Government of India, has completed 9 years of successful implementation on the 3rd December 2024. So it is Ministry of Social Justice and Empowerment. Correct? So Sugamya Bharat Abhiyan comes under your Ministry of Social Justice and Empowerment. Next, with which organization the Ministry of Defence has recently signed an agreement for short refit and dry docking of Indian naval ship Vikramaditya? It is with Cochin Shipyard Limited, and this contract is valued at 1,207.5 crore rupees. That is supposed to last the 5 months, and here the effort is in with the efforts of the Government of India's aim, that is Atmanirbhar Bharat, Self-Reliant India and Make in India initiative. This INS Vikramaditya, it is a 45,000 ton aircraft carrier, right? And the upgrades here that will be done on this INS Vikramaditya will boost the carrier's operational readiness, and also the systems here, technology will be updated. Next, which traditional sari from Gujarat has recently received the GI tag from GI industry? So it is Gharchola sari. Name of that sari is Gharchola sari, that recently received the GI tag. Next, according to recent report on science-based target initiative commitments by Indian companies that was released by Dash, India has secured which spot globally? So this data was released by ICRA ESG, Economic Social Governance Rating Limited, and here India stood at 6th position globally. UK has topped this with a total of 702 companies that are following this SBIT, that is your commitments, correct? That is your science-based target initiative commitments, and from India there are 127 companies, whereas India is on the 6th position and UK is on the 1st position. Next, which company has recently topped in India and the world respectively as per the report SIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies 2023 data released by SIPRI. So, who topped this in India and the world? So, Hindustan Aeronautics Limited in India, and in globally it is Lockheed Martin that secured the top position. If we are talking about Hindustan Aeronautics Limited globally was at the 43rd position. From India, then BEL was at the 67th position, and Madgaon Dock Shipbuilders Limited was at the 94th position. Next, USA approved $1.17 billion deal, $1.17 billion deal to supply advanced communication systems, sensors, logistic support to enhance the Indian Navy's Dash MH-60R multi-role helicopter, right? This is of Sikorsky, right? Indian Navy's Sikorsky's MH-60R multi-role helicopter. This US-made helicopter will be replacing the Sea King choppers that served in Indian Navy for almost 3 decades. Next, student, is our homework section. First, tell me, recently government has scrapped the windfall tax on which items? Tell me. Second, recently, then who won the Qatar Grand Prix? I almost gave the answer. Third question is, which country has won the 5th Men's Hockey Junior Asia Cup? I repeat, which country has won the 5th Men's Hockey Junior Asia Cup? So these are your homework, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 15 एंड 16 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा.
आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEML, इन्होंने 136 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। देन इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे राजनाथ सिंह, ये रशिया की विजिट पे थे, 3 दिन की विजिट थी। देन एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात करेंगे जहां पर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फंडिंग गैप है उसको पूरा करने की बात की गई। देन हम बात करेंगे एक MOU की, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशंस है उसको बेटर करेगा। एंड T+0 सेटलमेंट साइकिल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर स्टूडेंट्स आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सजेशन जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं रेगुलरली। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज भी रेगुलरली अपलोड करते हैं ताकि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। हम बात करेंगे BEML की। BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ HMVs का। HMVs क्या होती हैं? ये होती है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स। 136 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहाँ पे 8x8 HMVs को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा ताकि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ावा दिया जा सके। BEML बना रहा है, तो BEML कहाँ बना रहा है इसको? इन द पलक्कड़ प्लांट जो कि केरला में रहेगा। इससे क्या होगा? इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा। ये जो आपकी HMVs हैं ये बहुत रोबस्ट हैं। ये आपके -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक ईजिली यहाँ पे काम कर सकती हैं, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। इससे क्या होगा? ये एक बहुत ज़्यादा स्टडी है, राइट, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट, एंड इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को ये बढ़ावा देगा। एक और चीज़ BEML की बात करेंगे, ये शेड्यूल A CPSC है, ठीक है, एंड एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स। अगर इनकी मैं बात करूँ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम बात करेंगे इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी की, जो कि यूपी के गोरखपुर में सेटअप किया जा रहा है। बाय सितंबर 2025 ये सेटअप की जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है ना उसको सस्टेनेबली ट्रीट किया जाएगा। आपके ड्राई वेस्ट को, वेट वेस्ट को, हजार्डस वेस्ट को यहाँ पे इजीली सिक्योर इसको प्रोक्योर करके उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका प्रॉपरली, एंड सस्टेनेबली वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस यहाँ पे अपनाए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है 40 एकड़ की एरिया में ये स्पैन है, एंड इनका एम है कि हमें गार्बेज फ्री बनना है थ्रू सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और ये 40 एकड़ कहाँ पर है? ये है सुथनी विलेज में। सुथनी विलेज में जो कहाँ पर है? यूपी के गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जैसे हमने बात किया, 3 दिन की विजिट पे थे रशिया में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे ना सबसे, वो एक ही है कि इन्होंने अभी INS तुशील को यहाँ पे कमीशन किया है इनटू इंडियन नेवी रशिया में जाके, राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन एंड राजनाथ सिंह, करेक्ट। एंड इन्होंने यहाँ पे INS तुशील जो कि एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको कमीशन किया गया इनटू इंडियन नेवी इन रशिया। मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड NABFID के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया ताकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप है ना उसको यहाँ पे फंड किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अब हम जानते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारी बड़ी जगह है हमारे पास, खाली जगहें पड़ी हैं, उनको हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वहाँ पे ताकि हमारी जो कंट्री है वो आगे डेवलप हो सके, लोगों को सुविधाएं मिल सके, लोगों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, राइट। तो इसको फंड करने के लिए पैसे की भी जरूरत है, तो उस फंडिंग की जो गैप है उसको भरने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड NABFID के द्वारा ये LOI साइन किया गया, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे सबसे एक दो चीज़ याद रखेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने पहले $500 मिलियन का ये लोन अप्रूव किया है। IIFCL को ये पैसा दिया जाएगा ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कनेक्टिविटी में, ट्रांजिशन में, एनर्जी ट्रांजिशन में, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर में इसको यूज़ किया जाएगा। दूसरा एक लोन याद रखेंगे $788.8 मिलियन का ये लोन रहेगा। ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को ताकि अमरावती को ग्रीन सिटी यहाँ पे बनाई जा सके, जो कि ग्रीन एंड स्मार्ट कैपिटल सिटी बनाने का उसको काम किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है ICICI बैंक। इन्होंने एक MOU साइन किया CBA के साथ ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड रिलेशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको और मजबूत किया जा सके। CBA क्या है? कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ अमेरिका ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ICICI बैंक हो गया इंडिया से। तो इन दोनों बैंकों के बीच में यहाँ पे MOU साइन हुआ। इससे क्या होगा, एक दूसरे के बैंकों में एक दूसरे के कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। जो लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं वीज़ा वी, उनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें ध्यान रखते हुए, राइट, उसको फर्दर एनहेंस करते हुए। अगर मैं ICICI बैंक की बात करूं तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मैट कॉमियन, राइट, और हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। सेबी ने अनाउंस किया एक्सपेंशन ऑफ T+0 सेटलमेंट साइकिल फॉर टॉप 500 स्टॉक्स, राइट। सेबी के द्वारा ये लागू किया गया है एंड थ्रू दिस सर्कुलर सेबी ने अपना जो स्कोप है T+0 रोलिंग सेटलमेंट का उसको कैश मार्केट तक भी बढ़ाया है। अब देखो ये T+0 सेटलमेंट क्या होता है कि जिस दिन आपने ट्रेड लिया उसी दिन आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। दिस इज नोन एज T+0 सेटलमेंट। मतलब आपने ट्रेड लिया एंड विद इन उसी 0 दिन के अंदर ही आपका पैसा आपके पास आ गया, करेक्ट। एंड यहाँ पे अलाउ किया गया है दिस इनिशियल फेज में ये T+0 सेटलमेंट स्टार्टिंग विद बॉटम 100 कंपनीज एवरी मंथ टिल टॉप 500 कंपनीज आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। एंड ये जो T+0 सेटलमेंट मैकेनिज्म है इट विल बी अवेलेबल फॉर द मॉर्निंग सेशन ड्यूरिंग 8:45 से 9 AM तक। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जैसे मैंने बताया T+0 सेटलमेंट क्या है कि प्रोसेस जब ट्रांजैक्शंस आर सेटल ऑन द सेम डे एज द ट्रेड डेट विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। S&P ग्लोबल इन्होंने रिटेन किया इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.8%। देखो S&P ग्लोबल ये न्यूयॉर्क USA बेस्ड कंपनी है, राइट। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA है। ये ग्लोबल रेटिंग्स देती हैं एंड इन्होंने प्रोजेक्ट करा है यहाँ पे कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट होगा 2025 में, FY 2024-25 में, वो 6.8% का रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। हम बात कर रहे हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इनके द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी। एंड इसमें अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की बात करें तो माधव गडगिल जो कि इंडिया के हैं, जो एक इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये इनको क्यों सम्मानित किया गया इस लाइफ टाइम अचीवमेंट से, बिकॉज इन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, राइट, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ काफ़ी काम किया है, राइट। काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट में माधव गडगिल, पॉलिसी लीडरशिप में सोनिया, साइंस एंड इनोवेशन में लूकी, एंटरप्रेन्योरियल विजन में सीकम, इंस्पिरेशन एंड एक्शन में एमी बॉवर्स, इंस्पिरेशन एंड एक्शन में ही गैब्रियल पॉन।
तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक एनुअल अवार्ड है जो ऑनर करता है रिमार्केबल लीडर्स को एंड देयर इनिशिएटिव्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, सोशल सोसाइटीज, एकेडमिया, ये सब आते हैं जो काम करते हैं टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कर्नाटका पुलिस। इनको अभी इनॉग्रल फिकी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनॉग्रल है तो मतलब इसका ये पहला एडिशन था फिकी ड्रोन्स अवार्ड का। एंड किनको दिया गया? कर्नाटका स्टेट पुलिस को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। करेक्ट, इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। डायरेक्ट एक्विजिशंस याद रखेंगे कि बागमाने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड बागमाने रियो प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट, इनको एक्वायर किया जाएगा बाय बीआरईपी एशिया 3 इंडिया होल्डिंग के द्वारा। राइट, ये ब्लैकस्टोन बेस्ड, यूएसए बेस्ड ब्लैकस्टोन का आर्म रहने वाली है। सेकंड याद रखेंगे इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4 जो कि कैटेगरी 2 एआईएफ है, रजिस्टर्ड विद सेबी बाय गुरुग्राम बेस्ड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवीडीएन के द्वारा इसको एक्वायर किया जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई ने अप्रूव किया बर्मन फैमिली को टू एक्वायर स्टेक इन आरईएल। ये आरईएल क्या है? बेसिकली आरईएल आपकी एक कंपनी है। आरईएल एक ये आरईएल एक एनबीएफसी है, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरईएल है रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड, राइट। तो बर्मन फैमिली ये एक्वायर करेंगे आरईएल में जो कि है रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। 2116 करोड़ रुपए लगा के 26% स्टेक एक्वायर करेंगे। इनके पास पहले से ही 25% स्टेक अवेलेबल है, तो अब जो टोटल स्टेक हो जाएगा इनके पास 51% स्टेक हो जाएगा आरईएल में। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी 3rd कोपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट को लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग के लिए। ये जो कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट है इसको सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 किलोमीटर्स। फ्रांस इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड इसी को जो लॉन्चर्स का जो ये मिशन है ना, इसको VV25 नाम दिया गया है, राइट। इसको इतना डिटेल में ना देख के इसको बस ये समझेंगे, जो ये कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट है ना, ये बेसिकली आपके एक सिंक्रोनस सिंथेटिक अपर्चर रडार, सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लेस इंस्ट्रूमेंट से ये इक्विप्ड है। इससे क्या होगा, ये जो अर्थ की इमेजेस है ना वो बहुत हाई रेजोल्यूशन में ले सकती है। इससे हमारे इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में, डिजास्टर रिस्पांस में, मैरीटाइम सर्वेलेंस में, लैंड यूज एंड अर्बन प्लानिंग में काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पेरिस, फ्रांस में। एंड 1975 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कर्मन ड्रोन्स इन्होंने पार्टनर किया टीसीएल के साथ। टीसीएल है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल सॉल्यूशंस यहाँ पे बनाने का ये काम कर रही है। यूएवी क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2034 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप। डायरेक्टली याद रखेंगे। इवन आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई सारे स्टेडियम्स की इमेज आ रखी हैं, जो कि बोला जा रहा है कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स एंड इनोवेटिव डिज़ाइन वाले आपके स्टेडियम्स रहेंगे सऊदी अरेबिया के द्वारा जो अनवेल किए गए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्जुन अरगेसी, ग्रैंड मास्टर हैं, राइट। ये सेकंड इंडियन बने एंड 16वें प्लेयर बने वर्ल्ड में जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड ELO रेटिंग रीच की ऑफ 2800 पॉइंट्स, राइट। पहले इंडियन थे विश्वनाथ आनंद और सेकंड इंडियन बन गए हैं अब अर्जुन अरगेसी। इवन अगर मैं बात करूँ टॉप पोजीशन पर कौन आ जाते हैं यहाँ पर, तो वो है मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एंड इनकी ELO रेटिंग कितनी है? 2831 की। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर एंड अर्जुना अवार्डी राज मनचंदा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनको ओल्ड फॉक्स के नाम से जानते थे। 79 की एज में न्यू दिल्ली में इनका निधन हुआ। एंड इनको बेस्ट सर्विस स्पोर्ट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1981 में। एंड अर्जुन अवार्ड जो कि सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है 1983 में इसको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने विक्रम संपत की बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीग्रम इसको यहाँ पे लॉन्च किया, राइट। इसमें टीपू सुल्तान को एज अ कॉम्प्लेक्स फिगर डिस्प्ले किया गया है जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को यहाँ पे रजिस्ट किया था। एंड इस बुक को ऑथर किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा। रिलीज किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। न्यूट्रलिटी मतलब कोई दो देश अगर वॉर में है तो थर्ड देश किसी का साथ नहीं दे, वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे इंडिया भी न्यूट्रल हो जाता है रशिया और यूक्रेन के वॉर में। कहीं ना कहीं हम रशिया का साथ देते हैं, बट वहां ना जाते हुए न्यूट्रलिटी होती है कि किसी थर्ड दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर है तो किसी का साथ ना देना, दोनों के लिए न्यूट्रल रहना, राइट। एंड दोनों के बीच में एक संबंध बना के रखना, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारे रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स हैं एंड यूनिवर्सल हेल्थ है, कवरेज है, राइट, कहाँ कितने लोगों को हम ट्रीट कर पा रहे हैं, कैसे ट्रीट कर पा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एक थीम याद रखेंगे, हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। ये यहाँ पे थीम है, याद रखेंगे इस बार के इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय के द्वारा निक्षय निर्मय छत्तीसगढ़ अभियान को लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव 100 डे एक कैंपेन रहेगा बेसिकली। इसमें एम्स रायपुर में इसको लॉन्च किया गया था एंड इसका एम क्या है बेसिकली, लेप्रोसी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनके खिलाफ जंग छेड़ने का ये कैंपेन काम करेगा, राइट। यहाँ पे जो लोग सफर कर रहे हैं इससे, ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया से, लेप्रोसिस से, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प करना, ट्रीटमेंट में बेनिफिट प्रोवाइड कराना, एल्डरली लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करा के अगर वो पीड़ित हैं तो उनकी हेल्प करना, राइट। एंड ये कैंपेन एक बड़े विजन का पार्ट है छत्तीसगढ़ के, जो कि है बेसिकली हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करना है छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से। तो अगर यहाँ पे देखें, रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट, जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा। ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है, एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा। 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है, त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे, $225.5 मिलियन। तो कई सारी चीजें हो गई इसमें याद रखने की। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को। तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे। वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स। तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ, वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है। देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है वो शादी की। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट। तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है, 0-1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स। एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो। एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक। तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर। एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, अग्नि वॉरियर का। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट।
तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि एमएसएमई की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है? एमएसएमईज को फाइनेंस करना, राइट। एमएसएमई की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है एंड इससे क्या होगा, $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप, ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर एमएसएमई लैंडिंग की जाएगी एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया। INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की 2nd न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले? तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में। वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये इस एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से। इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में। द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर। तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी री-इलेक्ट किया, इंडिया वॉज री-इलेक्टेड टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म? फॉर 25-26 के लिए री-इलेक्ट किया गया है इंडिया को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो ब्रिक्स ने ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप। एंड याद रखेंगे ब्रिक्स नेशन से 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राजील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी। तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड UK। नेक्स्ट, when is UN Day of Remembrance for all victims of chemical warfare annually observed across globe?
कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट की हॉकी टीम ने रिसेंटली अभी जीता 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 को? तो ओडिशा की टीम ने जीता। ओडिशा की टीम ने हरियाणा को हराया बाय 5-1 इन द फाइनल्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वर्थ 226.18 करोड़ रुपीस का? ये कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, राइट। यहाँ पे 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज को डिलीवर किया जाएगा अंडर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। इससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं, राइट, उनमें ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसमें इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेहेंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑफ मलेशिया। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ये है आपकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, राइट। ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ था, और कहां पर? मलेशिया में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इंडियन आर्मी में किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, किस रेजिमेंट के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया? तो महर रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 78 पर्सनल्स फ्रॉम महर रेजिमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन अग्रीमेंट, जिसका एम रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स को बेटर यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सके, बेटर पेस्टिसाइड्स या फिर बेटर एग्रीकल्चर का खाद, आपकी सारी ये चीज़ें मिल सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का अग्रीमेंट साइन किया? $98 मिलियन का यहाँ पे सेटअप किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, बेटर लेबोरेटरीज होंगी वहाँ पे, ट्रेन स्टाफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे की जाएगी, ताकि प्रोड्यूस को यहाँ पे ग्रो किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? सो नेदुम्पिला नेटुम्बो नांदी नादियावा, राइट, इनको अपॉइंट किया गया, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नागोजी ओकोंजो-इवेला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर अ कॉन्सिक्यूटिव 4-year टर्म, एंड इनका जो सेकेंड टर्म है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड नवंबर 2024 में? तो कहां पर हुआ था इनॉग्रल सेशन इसका? ये हमें देखने को मिला था न्यू दिल्ली में, ठीक है। सॉइल हेल्थ पर, सॉइल मैनेजमेंट पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये इवेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चोजन एज द यूएस एम्बेसडर टू द नेटो? तो यूएस एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं टू नेटो? वो रहेंगे मैट विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान, जिसको हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको 9 साल पूरे हो गए ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 3 दिसंबर 2024। तो अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर द शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य? तो वो है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे INS विक्रमादित्य के जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, एंड ताकि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लाया जा सके। 1207.5 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड 5 महीने के लिए ये रिफिटिंग चलेगी। नेक्स्ट, गुजरात की किस साड़ी को अभी GI टैग मिला? तो वो है घरचोला साड़ी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स की बाय इंडियन कंपनीज, जो कि रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। ESG होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 6th रैंक रहेगी ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली किसने टॉप किया, तो यूके ने टॉप किया। इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 127 कंपनीज रहेंगी यहाँ पे। यूके की कितनी कंपनीज हैं? 702 कंपनीज ने यहाँ पे कमिट किया टू द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की लिस्ट में, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की गई है? तो अगर मैं बात करूं इंडिया की 3 कंपनीज है टॉप 100 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd, BEL 67th पोजीशन पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे। तो इंडिया में तो हॉल ने यहाँ पे टॉप किया, ग्लोबली लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे टॉप किया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी जो कि यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट होमवर्क सेक्शन पे। पहला अभी बताओ, रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। सेकंड क्वेश्चन, अभी वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया हमने, कब ऑब्जर्व किया। थर्ड, एक और डे बताओ, इंडियन नेवी डे, कब ऑब्जर्व किया गया। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना होमवर्क क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर देना हमारे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं।